today's session we are going to cover the chapter coordinate geometry from class 9 CBSE board, and in this whole video I'm going to cover the whole chapter and I'm going to take up the practice in the end when I explain you all the concepts. So हम इसी वीडियो में हम concepts plus applications दोनों सीखेंगे. Before we begin, I should tell you this is the most scoring and the easy chapter in 9th class syllabus. And have you ever wondered why do we study coordinate geometry, right? Why does it come in picture? How it is helpful for us in our everyday life? So let us understand, children. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपकी नॉलेज के लिए बता दो, इसको एनालिटिक ज्योमेट्री भी बोलते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ अ ज्योमेट्री व्हिच कनेक्ट्स योर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री टुगेदर. जब आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री इकट्ठे पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प यू टू लोकेट द पॉइंट्स इन द स्पेस. इट आल्सो हेल्प्स यू टू मेजर द डिस्टेंसेस and the midpoints. It helps you to study various kind of geometrical shapes, right? And you have to you can study those geometrical shapes algebraically as well. So that is why I'm saying the coordinate geometry is a concept of mathematics which connects your algebra and your geometry. Geometry में आप different shapes पढ़ते हैं, algebra में आप calculation सीखते हैं. जब आप इन दोनों को merge करके पढ़ते हैं, that brings down your coordinate geometry. So इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं, लाइक नेविगेशन एंड मैप्स. नेविगेट करने में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे, कार्टेशियन प्लेन में कौन सा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, उस पॉइंट की पर्टिकुलर डेफिनेट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करता है. आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम आता है. एंड ऑल्सो इन द स्पेस, राइट, टू नो द पोजिशन ऑफ द प्लांट, स्टार्स और द प्लैनेट्स, राइट, विच कैन हेल्प इन एस्ट्रोनॉमी. सो आप देख रहे हैं कि छोटा सा चैप्टर, इजी सा कॉन्सेप्ट, कितने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है. आगे चल के ये चैप्टर्स आपके 10th में भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडवांस, और फिर ये आपका वेक्टर जो आपकी पोजीशंस बताता है. तो इस चैप्टर को समझने के लिए पहले ये समझना, इसके टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या वर्ड्स हम यूज करते हैं. देन वी विल मूव अहेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to understand what is a Cartesian plane. अब Cartesian plane क्या होता है? It's a simple. You must be having a sheet of paper right in your hand or your notebook. That sheet of paper can act as a Cartesian plane in which you can draw the two lines, right? One is the vertical line and the one is the horizontal line. Where the two lines meet each other, that point is known as origin, and where you are drawing it, that is known as Cartesian plane. as एक ऐसा plane जो आपको 4 quadrants दे देता है, जो आपके different dimensions बताते हैं, x axis की and y axis की, the positive and the negative for x and positive and negative for y. तो हमें कभी भी किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना होता है, कार्टेशियन प्लेन की हेल्प हम लेते हैं. तो कार्टेशियन प्लेन को समझेंगे. हियर आई हैव ड्रॉन a Cartesian plane for all of you children. Now see, this is your Cartesian plane. This is our Cartesian plane, children. And to draw a Cartesian plane, you need two lines, right? Two perpendicular lines. One is horizontally drawn and one is vertically drawn. And where these two perpendicular lines are meeting each other, that is known as origin. उसको हम क्या बोलते हैं? Origin. अब आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन का जो राइट साइड होता है, दैट इज अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट, एंड लेफ्ट इज द नेगेटिव साइड ऑफ द x-axis. Upward perpendicular of y is your positive side and downward perpendicular of your y is your negative side. तो ये बात आप अच्छे से समझेंगे. y upward is positive, y downward is negative, x right is positive, x left is negative. तो अगर यहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं. और हम हमेशा किसी भी पॉइंट का लोकेशन उसकी एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन से बताते हैं, राइट. सो एक्स पोजीशन को हम हमेशा पहले बताते हैं और वाई पोजीशन को हम उसके बाद लिख के बताते हैं, राइट. सो What do you mean by x position and y position? With respect to x axis वो point कहाँ located है, with respect to y axis वो point कहाँ located है, ये हो जाती है उसकी x position and y position, right children? So अब जब भी हम एक Cartesian plane draw करते हैं जिसमें हम two perpendicular lines draw करते हैं, one is horizontal and the other one is vertical, it divides it into a 4 quadrants. Quadrants मतलब क्या होता है? 4 equal regions, right? So when you're dividing the whole into 4 equal regions, you call it a quadrant. So you have the first. हम कैसे चलते हैं बच्चा? हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमने कैसा मूवमेंट लिया? हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब आप बहुत से बच्चे भूलते हैं, क्यों? क्योंकि ये मगअप करते हैं। बेटा कोई भी चीज मगअप करने की नहीं होती, हर चीज समझने की होती है। जितना आप समझ समझ के प्रिपेयर करेंगे अपनी चीजों को, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके एक एग्जाम के लिए नहीं रह जाएगा, वो कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग आप याद रखेंगे और आप उसका एप्लीकेशन आगे जाके जब अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में अप्लाई करना होगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर आप देखते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स है ये और y है ये। तो अब आप खुद देखो कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की कौन सी साइड आ रही है? x की पॉजिटिव आ रही है, y की पॉजिटिव आ रही है। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लोकेट होगा तो वो x का पॉजिटिव और y का पॉजिटिव देगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसको समझो, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई। नेचर का क्या मतलब है कि एक्स और वाई कैसी वैल्यूज लेंगे? एक्स और वाई हमेशा 0 से ग्रेटर वैल्यूज लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं। क्या है ये दोनों? पॉजिटिव। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हो तो आपका y तो पॉजिटिव है, बट x का कौन सा साइड मिल रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट को नेगेटिव साइड मिल रहा है। तो पहले हम x पोजीशन बताते हैं, तो x की सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी और y की आपकी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव वर्क करेगा। दैट मीन्स जो x की वैल्यू होगी हमेशा लेस देन 0 होगी और y की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलो, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव। y नेगेटिव नेगेटिव, x का नेगेटिव है और y का भी आपका क्या है बच्चा? तो मूविंग डाउन। लेट मी यूज स्केल फॉर दिस। इफ यू आर मूविंग डाउन तो y का क्या, कौन सा साइड आ गया? आपका नेगेटिव साइड आ गया। राइट चिल्ड्रन? तो y विल हैव द नेगेटिव साइड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको x और y दोनों ही लेस देन 0 मिलेंगे। बोथ द वैल्यूज आर नेगेटिव। राइट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चलेंगे, x का पॉजिटिव साइड आ गया, y का नेगेटिव आ गया। चीजों को विजुअलाइज किया करो, चीजों को डायग्रामेटिकली समझा करो। तो विजुअलाइजेशन मेक्स योर मेमोरी मोर शार्पर रादर देन रोट लर्निंग। तो आपके अगर दिमाग में, इफ यू क्लोजिंग योर आईज एंड आप दिमाग लगा रहे हो कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से मिल रहा है, तो मेरी एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास एक्स नेगेटिव हो गया बट वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव होगी। बट जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा हूं या कर रही हूं, देन माई बोथ द वैल्यूज विल बी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में इट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। Right? So x will be positive but y will be negative. That means x will take the value greater than 0 and y will take the value less than 0. So positive negative, this way it will work. तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। If both the coordinates are positive, then it is in the first quadrant. If it is negative positive, then it is a second quadrant. If it is negative नेगेटिव देन इट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चा? नाउ मूविंग अहेड, और हमेशा जब हमें पूछा जाता है कि ये कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमेशा हमें पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताना होता है और फिर हमें वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन बतानी होती है। ठीक है? फॉर दैट पॉइंट, now we have understood in my last slide that what is origin. Origin is a point where the x-axis and the y-axis perpendicularly meet. So origin एक ऐसा point है जिसका x position भी 0 है और उसका y position भी 0 है। Right children? अब आप ये ध्यान रखेंगे, पहले हम हमेशा x कोऑर्डिनेट बताते हैं, फिर हम हमेशा y कोऑर्डिनेट बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। And the other name for x coordinate is abscissa and the other name for y coordinate is ordinate. x coordinate को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और y coordinate को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ऑर्डिनेट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ किया हुआ है, वी हैव द x एक्सिस, वी हैव y एक्सिस, वी हैव ओरिजिन एज वेल। सो अब आप मुझे खुद से देख के बताएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक क्विक रिकैप हो जाएगा लास्ट स्लाइड का। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। राइट? सेकेंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। Right? You have negative and positive. So let me write this way.
अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपका x भी नेगेटिव हो चुका है, y भी नेगेटिव हो चुका है, सो दैट विल गिव यू नेगेटिव नेगेटिव। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सो यू हैव x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। तो x क्या है आपका पॉजिटिव है और y क्या है बेटा नेगेटिव है। गॉट इट। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस मीट इज नोन एज origin. So what are the coordinates of origin? 0 0. That means the origin lies at the 0 position of x axis and it also lies at the 0 position of the y axis. Very simple. Now moving ahead, आगे चलते हैं। अब हम ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो एंड ऑफ द पॉइंट that on the y-axis are always y0. अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर क्वाड्रेंट में पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो आपने सीख लिया, बट व्हाट इफ द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द एक्सिस? इट कैन बी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वन बाय वन समझते हैं। अगर आपके पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, लेट्स से एट 1 पोजिशन, 3 पोजिशन, 5 पोजिशन, तो वो y का कौन सा पोजिशन ले रहे हैं? ऑलवेज 0 पोजिशन। तो अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका ऑर्डिनेट, दैट मींस y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0. व्हिच पोजीशन विल कीप ऑन चेंजिंग? द x पोजीशन विल चेंज बट द y पोजीशन विल रिमेन सेम। वाइस वर्सा फॉर द y एक्सिस। अगर हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, राइट तो अगर हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं बच्चा, तो y एक्सिस के केस में आपका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा x 0 पोजीशन लेगा एंड द पोजीशन ऑफ द y कोऑर्डिनेट विल चेंज। वाई? क्योंकि आप y एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो y एक्सिस का पोजीशन, y कोऑर्डिनेट का पोजीशन चेंज करेगा, x कोऑर्डिनेट दैट मींस एब्सिसा का पोजीशन सेम ही रहेगा। Right, children? What if I ask you what is the equation? What is the equation for x-axis and what is the equation for y-axis? मैं क्या, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि x-axis का equation क्या है और y-axis का equation क्या है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? जल्दी से सोचिए। एक्सिस का अगर हमसे पूछा जाएगा कि इक्वेशन क्या है, तो दैट इज इक्वल टू, आपका एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा हमेशा y इज इक्वल टू 0। सो व्हाट डज दैट मीन चिल्ड्रन? बहुत सिंपल सा है। एक लीनियर इक्वेशन अगर हम लिखते हैं, सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर आप एक्स एक्सिस का देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस में जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। सो y इक्वल्स टू 0 मतलब y का पोजीशन तो फिक्स है, दैट इज 0, बट x में चेंज इट्स वैल्यू। ठीक है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस का इक्वेशन, तो y से वर्सा दैट इज x इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इसमें x का फिक्स वैल्यू हो गया, दैट इज 0, एंड y में टेक एनी वैल्यू, राइट। y का आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा जब भी आपसे एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाएगा, बिकॉज दिस इज एन इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऑल्दो चैप्टर 4 है, बट ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ गया है और आपसे पूछा गया व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0 और वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं बेटा, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So we have the question, write down the coordinates of each of the following points, that is P, Q, R, S and T. तो कोऑर्डिनेट्स लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि x पोजीशन पहले, उसके बाद कॉमा करके y पोजीशन। तो हम सबसे पहले P से स्टार्ट करते हैं। तो आप x की पोजीशन उसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके चेक करेंगे, दैट इज 2 एंड y पोजीशन इज 4। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2, 4। सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 4, 2, राइट। एंड देन आपके पास R है, R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चा? -2, 3, बिकॉज नेगेटिव साइड आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका T है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द S। पहले हम S फाइंड आउट करते हैं, S पर क्वेश्चन सीक्वेंस चलेंगे। तो S का पोजीशन क्या है बेटा? 5, -3। X पोजीशन क्या है उसकी? 5 है और y पोजीशन क्या है? -3। वो हमेशा आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके करेंगे। अब आ जाएंगे आप T पोजीशन पर। T में आपका x एक्सिस का पोजीशन है -4 और y एक्सिस का पोजीशन है आपका -1। सो दिस इज हाउ वी राइट द कोऑर्डिनेट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी का पार्ट है। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, वन एक्सरसाइज में चैप्टर फिनिश। नाउ वी हैव दिस चिल्ड्रन,
दिस क्वेश्चन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी ई। अब ये आप मेरे साथ साथ करेंगे, क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, एक आप मेरे साथ साथ करेंगे। सो ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए का एक्स पोजिशन इज -6 एंड वाई पोजिशन इज 5। बी की अगर हम बात कर रहे हैं, एक्स पोजिशन इज 5 एंड वाई पोजिशन इज 4। सी की अगर हम बात करते हैं तो इट्स एक्स पोजिशन इज -3 एंड पोजिशन फॉर वाई इज 2, राइट। अगर हम डी की बात करते हैं, सो इट्स एक्स पोजिशन इज 2 एंड -2। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ ई पॉइंट, दैट मीन्स -1 -4, right children? So this is how we can write down the coordinates for A, B, C, D and E. Now moving ahead towards this question, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका डेफिनेटली 4 मार्कर में आएगा, बहुत सारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। 3 vertices of a rectangle ABCD आपको गिवन है। A is 3 1, B is -3 1, C is -3 3, and you have to plot these points on the graph paper and you have to find out the coordinates of the fourth vertex D. Also find out the area of the rectangle ABCD. आपको हिंट दे रखा है कि coordinates of D are 3 3। अभी हम समझते हैं कैसे। दो चीजें हमें हेल्प करेंगी। पहले तो आपको शेप दे रखी है कि कौन सी शेप फॉर्म हो रही है, रेक्टेंगल। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द रेक्टेंगल? दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। तो पहले हम ए बी सी कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लें। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चा? 3, 1। So 3 from x position and 1 from the y position. So this will give you 3, 1। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? ये आपका पॉइंट हो गया ए। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की, विच इज सेइंग -3, 1। सो -3 ये है एंड दिस इज 1 फ्रॉम द y। तो ये आपका बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख देते हैं -3, 1। ठीक। अब सी पॉइंट कहाँ है? -3, 3। -3, दैट इज दिस वन। ये आपका सी पॉइंट है विच इज -3, 3। अब रेक्टेंगल के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो पहले मैं इसकी साइड्स ड्रॉ कर लेती हूँ। राइट चिल्ड्रन, यू हैव गॉट दिस। तो आपको ध्यान रखना है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो इक्वल ड्रॉ करने के लिए आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस हियर, राइट। 3 units from the left y and 3 units from the right y, and here you have drawn this, right children? अब हमने क्या किया है, हमने इसका ये फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया है। तो फोर्थ वर्टेक्स आप पोजीशन से देखेंगे 3 फ्रॉम x, 3 फ्रॉम y, सो वी गॉट द फोर्थ वर्टेक्स d विद द कोऑर्डिनेट्स 3, 3। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप ग्राफ पेपर की हेल्प लेंगे, आप उसमें पॉइंटर्स मार्क करेंगे डिपेंडिंग अपॉन विच कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू। तो मुझे यहाँ पे 3 1 3 1 -3 तक गया हुआ है, तो आप इसमें अपर 2 क्वाड्रेंट्स बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं और लोअर 2 क्वाड्रेंट्स भी साथ ड्रॉ कर सकते हैं। और जब भी आप खुद से पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, सो ऑलवेज डू राइट द स्केल। तो आप स्केल लिखने के लिए बेटा, स्केल में आप कैसे लिखते हैं? अगर आप अपने ग्राफ शीट देखेंगे तो ग्राफ शीट्स में आपके यहाँ पे 10 डिविजन्स होते हैं विद इन 1 बॉक्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ले रहे हैं आप। 1 यूनिट मतलब आप 1 1 का गैप ले रहे हैं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 6। आप 1 1 यूनिट का गैप ले रहे हैं ऑन y axis, right? 10 small divisions is equal to 1 1 यूनिट। y एक्सिस पे भी आपकी 10 स्मॉल डिविजन्स कितनी है? 1 1 यूनिट। क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए आता है तो हमेशा 1 मार्क आपका स्केल लिखने का होता है। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ एंड एनसर्कल द पॉइंट विच यू आर लोकेटिंग ऑन द कार्टेशियन प्लेन। देयर you have to accompany that point with the coordinates, right, to tell the exact location of the point, right children? So we have found out the coordinate of the fourth vertex D, which is 3 3, right? And also find out the area of the rectangle ABCD. So area of rectangle ABCD, right? Area of rectangle ABCD बताने के लिए that is always the product of dimensions, right? तो अगर आप इसके प्रोडक्ट देखेंगे, that will be your AB into BC। सो आपका AB कितना है बेटा? यूनिट्स में आप काउंट करेंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता है। सो लेट मी टेल यू, लेट मी
यस, तो अगर आप इधर से देखेंगे तो 3 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड 3 यूनिट्स फ्रॉम द राइट, तो 3 + 3 मेक्स इट 6 यूनिट्स। तो लेंथ कितना हो गया इसका? 6 यूनिट्स। और 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, तो आपका ब्रेथ कितना हो गया? 2 यूनिट्स हो गया। सो आपका व्हाट डू वी से, आपका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? ए बी कितना है आपका? 6 यूनिट्स, और बी सी कितना है आपका? 2 यूनिट्स, विच इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, बिकॉज यूनिट लिखने के सेपरेट मार्क्स होते हैं, और नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। कोई चैप्टर बहुत इजी है, बट छोटी छोटी बातों से बच्चे अपने मार्क्स डिडक्ट करवाते हैं, जैसे कि नॉट राइटिंग स्केल, जैसे कि नॉट हाईलाइटिंग the point which is on the Cartesian plane, not labeling the figure that has to be drawn, right? Not writing in a adequate formulas, और मिसिंग आउट द यूनिट्स। 12 निकाल के बच्चे छोड़ देते हैं। तो आप सोचो 4 मार्क का क्वेश्चन आया, 2-3 चीजें हमने मिस कर दी, तो डेट नंबर तो हमारा ऐसे ही कट गया। तो व्हाट वी गॉट जस्ट 2.5। तो ये क्वेश्चंस मार्क्स खोने के लिए नहीं होते, दीज आर स्कोरिंग क्वेश्चंस। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनता है, दैट इज मिरर इमेज। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं मिरर इमेज के क्वेश्चंस को लेके। मिरर इमेजेस हेल्प अस टू विजुअलाइज एंड कैलकुलेट द रिफ्लेक्शंस ऑफ पॉइंट्स अक्रॉस द एक्सिस। जैसे हमें कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती है, सिमिलरली मिरर इमेजेस के थ्रू हमें उनकी मिरर इमेज की भी, दैट मीन्स रिफ्लेक्शंस की भी एग्जैक्ट पोजीशन पता लग सकती है। So to do so, we have 3 basic rules. What are those 3 basic rules? Let us understand, children. If we need to locate and we need to find out the mirror image of any point on the Cartesian plane across x-axis, because आपका x-axis as a mirror act कर सकता है, across y-axis, and also from the origin, right, over the origin. तब आपका फर्स्ट रूल कहता है कि अगर हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करना है अक्रॉस एक्स एक्सिस, देन वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सिंपल है, उल्टा उल्टा चलता है। एक्स एक्सिस के अक्रॉस फाइंड आउट करना है तो वाई का साइन चेंज कर दो, वाई के अक्रॉस फाइंड आउट करना है तो एक्स का साइन चेंज कर दो, और ओरिजिन के अक्रॉस फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्शन पॉइंट, तो आप एक्स और वाई, दैट मींस एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दोनों के साइन चेंज कर दो। रूल इज सुपर सिंपल, एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करो। If we need to find out the reflection point from x-axis, then I'm going to change the sign of y coordinate. If I'm going to find out the reflection of a point from y-axis, then I'm going to change the sign of x coordinate, and from the origin, then I'm going to change the sign of both. Now let us understand with the help of the Cartesian plane. इसे हम समझते हैं. It's here. Yes. So we have the 3 images, and what we have to do, you know the rules now. You can, so you have the object, right? This is a triangular object, and it has its 2 points which are located here. So if I need to find out the image, right, it's mirror image, and this is with respect to x-axis, that means across the x-axis. So where we have placed the mirror, we have placed the mirror over and above the x-axis. तो उसका लोकेशन कहाँ आएगा? लोकेशन में आप क्या करोगे? अगर आपका x-axis के क्रॉस कर रहे हो तो आपको y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, रेस्ट इज एवरीथिंग फाइन। तो आप इजीली मिरर पॉइंट, मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हो, उसकी रिफ्लेक्टिव इमेज ड्रॉ कर सकते हो, राइट? और अलोंग व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग आउट द मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x-axis, दैट इज आल्सो नोन एज वाटर इमेज, राइट? दैट इज ऑल्सो नोन एज वाटर इमेज। अब हम इसे वाटर इमेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लेक्स जो होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, इसमें स्टैग्नेंट वाटर होता है और हमारा रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। अगर हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो हम वाटर इमेज फाइंड आउट करेंगे, और उसका हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे। वी नो आवर ओन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ आवर रिफ्लेक्शन, देन वी नीड टू चेंज द वाई कोऑर्डिनेट व्हेनेवर वी आर वर्किंग ऑन वाटर इमेज, और वी आर फाइंडिंग आउट द इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो आप देखेंगे ये पॉइंट है आपका जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,5, तो इसके वाटर इमेज या फिर उसके मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस की पोजीशंस होंगी 0, -5। तो हमने क्या किया? हमने y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया। हियर यू हैव 4,3, राइट? व्हेन यू आर सेइंग यू हैव 4,3, सो आप y कोऑर्डिनेट का पॉइंट चेंज कर देंगे, तो उसकी मिरर इमेज का पॉइंट क्या होगा? विच इज 4,-3। वेरी सिंपल। नाउ विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, अगर मुझे फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो मैं कैसे करूंगी ये समझेंगे बच्चा। Now this is a point,
राइट। अगर मुझे ए पॉइंट, और ये आपके पास दो इमेजेस हैं इसमें, दिस इज अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप खुद से बताएंगे कि ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा। आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कर रहे हैं तो आप एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट चेंज कर देंगे। सो जब आप एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट चेंज करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन आपका दूसरी साइड बनेगा। ये दो ऑब्जेक्ट्स की फिगर है तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, राइट। तो इसका आपका क्या बनेगा बच्चा, दिस विल बी योर -1, 3, right? And this will be your -1, -2। इसका रिफ्लेक्शन इमेज क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, दैट इज -1, 1। ठीक है। अगर आप वाई से वर्सा देखते हैं, दूसरी साइड आप मिरर रख रहे हैं, मिरर इज वन साइड वर्किंग। अगर आप इस ऑब्जेक्ट का देखेंगे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे, 5, 3, राइट। एंड फॉर दिस इट विल बी 3, 1, and this will be 5, -2। सो हम जहां जहां y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वहां वहां हम x कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे। नाउ लेट्स वर्क अपॉन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर ओरिजिन से करते हैं तो आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज द मिरर इमेज। तो अब आप देखेंगे चिल्ड्रन, ए है विच इज 1, 4, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, -1, -4। क्यों, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कर रहे हो और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। बी का अगर आप फाइंड आउट करेंगे 1, 1 है तो उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट कहां बनेगा, -1, -1 पर। सी आपका 5, 1 है तो उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट कहां बनेगा, -5, -1। So right children, this is how we need to do. Now let us proceed towards the next concept which is superly important, that is perpendicular distance. अब perpendicular distance हमें कैसे find out करना होता है, from x axis and from y axis. So आपको जब भी x axis से perpendicular distance find out करना है, that is the absolute value of y coordinate. अब absolute value क्या होती है, modal value। अब modal एक special कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में, जिससे कोई भी वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव भी। राइट चिल्ड्रन। सो अगर आपको y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट है a, जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 27, 13। अब मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो मैं इसका y कोऑर्डिनेट चेक करूंगी विच इज 13। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 13 यूनिट्स। राइट। अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस चेक करना है, सो द एब्सिसा वैल्यू, द एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू विल गिव मी दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, 27 यूनिट्स। सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ग्रेड 9 टू हैंडल दिस चैप्टर। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी आएगा, यू विल बी एबल टू डू इट। राइट। सो लेट्स प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं टू गेन सम कॉन्फिडेंस। इफ a, -2, 3 and b -3, 5 are 2 points, then the abscissa of a minus abscissa of b. So abscissa क्या होता है, x coordinate, right? अब abscissa of a क्या है, उसका वैल्यू लिख देंगे -2 minus abscissa of b which is -3, right? So that is -2 plus 3 which is equal to 1. So the answer is 1. इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत से पेपर्स में देखेंगे, 9th क्लास, आपके यूटीज में, आपके टर्मिनल्स में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बन के आता है। The point which lies on the y-axis at a distance of 5 units in the negative direction of y-axis is this. अब इसको ब्रेक डाउन करो, इस इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करो। सबसे पहले देखो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। सो वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है। अब एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का क्या मतलब है, -5। So 0, -5 is the answer. So you have breakdown. So this is an integrated question of two concepts which we have learned in this chapter. Which of the following points lies on the line y equals to 2x plus 3? अब इसमें से कौन सा पॉइंट इस पे लाई करता है, सो दैट मीन्स पॉइंट लाई करता है तो दैट मीन्स वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जब भी आप उसकी x और y की वैल्यू डालेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। सो y क्या है बेटा, y is equal to 2x plus 3। अब फर्स्ट फिट करके देखते हैं, 2 is equal to 2 times 8 plus 3, absolutely not, right? अब अगर आप y देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 3
I think I did some mistake. Wait. Now, which of the following points lies on the line y equals to 2x plus 3? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर आप x और y की वैल्यू डालेंगे तो आपका वो इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट में आपका y 8 है और x आपका 2 है. 2 times 2 plus 3. So that makes it 4 plus 3, 7. So which is not equal, not satisfying. Next 3 equals to 9, 3, 9. तो अगर आप इसको पुट करके देखते हैं तो y का वैल्यू इज 9 और x इज 3. So 2 times 3 plus 3. So that is 6 plus 3, that is 9. So this is satisfying, right? ये क्या कर रहा है, ये satisfy कर रहा है. So option B is the right one. Right now, the image of the point minus 3, 4 with respect to y-axis has the coordinate. तो आपके पास point है minus 3, 4. आप इस point की image find out करते हैं with respect to y-axis. अब आपको with respect to y-axis अगर image find out करना है तो आपको किसका sign change करना होगा, x coordinate का sign change करना होगा. So the point will become 3, 4. Very simple. If you know the concept, you know the rules well, you can easily make out each and every question. Right, children? Yes, we have finished the whole chapter. You have learned all the concepts well. I've taken some practice also. So in my next session, I will be bringing up Q&A for this chapter. All the questions which are handpicked from the different schools' question paper, how these questions are asked during the exams, and we'll solve it together. Are you able to make it or not? So thank you for